قانون کے لیے جو قانون بنائے وہ بھی اور جو قانون مانے وہ بھی، دونوں کو اخلاق کا قانون پہلے ماننا چاہیے. آپ نے ہم تو ہیکڑی میں زندہ ہیں. مجھے تو سارا دن ہر شخص دھمکی دیتا لگتا ہے. دھمکی میں ہم کیسے محبت کریں گے سمینا؟ کرتے بھی ہوں گے تو جھجک کے پیچھے ہٹ جائیں. تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ مرکز صحیح ہو، رخ صحیح ہو، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو خود بھی یقین ہو. یہ بے یقینی کی زندگی 130 فٹ حوروں کے وعدے پر زندہ رکھ سکتی ہے، زندگی کے چیلنج کا مقابلہ کرنا نہیں سکھا سکتی. بہت شکریہ. کبھی شرافت آپ کے حسن سلوک اور جسے آپ نے فلسفہ کہا ان بنیادی قدروں پر یقین کا نام تھا. اب شرافت گاڑی کے نئے ماڈل کا نام ہے، اور یہ انتخاب ہم نے خود کیا ہے. اس میں کوئی صہیونی، کوئی ہندو، کوئی یہودی سازش شامل نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں یہی سازشیں شامل ہوتی ہیں. آپ سوچئے کہ ہم خود کو کہاں لے آئے. ہم انمول لوگ ٹکوں کے دام بکنے لگے. آپ کو پتا استاد ہونا ایک نشہ ہے، اس کا خمار اترتا نہیں زندگی پر. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں، آپ سے یہ بات کہہ سکتی ہوں، جو اس شعبے میں بہت شعوری طور پہ آئے تھے. میں اس لیے نہیں آئی تھی کہ یہاں نہیں جا سکی، وہاں نہیں جا سکی، یہ نہیں ہو سکا، لہٰذا پڑھانا ہی ہے. میرے والد جب مجھ سے بہت خفا تھے میری ملازمت پر، تو میں ان سے صرف ایک جملہ کہتی تھی کہ مجھ پر کتاب کا قرض ہے، میں جیتے جی وہ قرض جتنا اتر سکے اتارنا چاہتی ہوں. ہم تو تاریخ لکھتے ہیں سپہ سالاروں کی. ہم نے آج تک انسانوں کی تاریخ نہیں لکھی تو احساس کی تاریخ کیا لکھیں گے؟ ہماری ساری تاریخیں آپ دیکھیے، محمد بن قاسم سپہ سالار، عسکری قیادت، 18 برس کی عمر میں آئے، سندھ کو پامال تاراج کر کے واپس چلے گئے. میرے والد کہتے تھے کہ کچھ بنو یا نہ بنو مگر ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرنا. دونوں والدین کا مہذب کرنے پہ بہت زور تھا. مثلاً اگر آپ اٹھیں بیٹھیں بھی تو سلیقے سے، بات بھی کریں تو سلیقے سے، غصہ بھی کریں تو سلیقے سے، روئیں بھی تو سلیقے سے، آواز اونچی نہ ہو. اور اس میں ایک تہذیب میں انہوں نے بہت اچھی بات بھی سکھائی. میری ماں ہمیشہ کہتی کہ شکایت کرنا تمیزدار لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا. اس لیے زندگی کو قبول کرنا آیا بہت بچپن سے. بات کوئی بات ہوتی تھی، ہم 2 ہی بہن بھائی اکٹھے پل رہے تھے. اور یہ بھی کہوں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ میرے بچپن میں بہن اور بھائی میں ہماری تربیت میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، میرے ساتھ نہیں ہوئی. زندگی سے محبت کرنے کے لیے تربیت چاہیے، اور تربیت اس چیز کا نام ہے جب آپ اپنے آپ سے اٹھ کے زندہ رہنا سیکھتے ہیں. اگر آپ شرکت کرنا جانتے ہیں اور شریک کرنا جانتے ہیں. ہم نے کیا کیا کہ اب میں اور آپ بیٹھے ہیں نا یہاں، میں آپ سے بہت پہلے سے بیٹھی ہوں اور بڑے بڑے فلسفے ہم نے آج جھاڑ دیے، کوئی بچا نہیں ہے بات. مگر اب ہم آپس میں بات نہیں کرتے، مکالمہ ختم ہو گیا ہمارے درمیان. کتنی باتیں تو مکالمے ہی میں طے ہو جاتی. کوئی خفا ہوتا تھا تو اس سے جا کے پوچھتے تھے کہ کیوں خفا ہو، وہ تھوڑی دیر تو نہیں بتاتے تھے اور ناراض ہوتے تھے. اگر آپ ان سے بہت رسان ٹھنڈے دل سے پوچھتے تھے کہ نہیں جی چاہتا ہے بتائیے ہم سے کیا غلطی ہوئی، آپ کیوں خفا ہیں. اور اگر آپ کو اپنی غلطی پتہ چل جاتی، درستی اسی دن شروع ہو جاتی ہے جس دن آپ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے ہیں. میں نے بہت دبے لہجے میں کہا پاپا میں نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے. کہنے لگے وہ تو ٹھیک ہے پر تم نے پڑھا لکھا کچھ نہیں. میں سمجھتی ہوں صحیح کہا. میں اعتراف کرتی ہوں امتحان کے لیے پڑھنا کچھ اور چیز ہے اور جاننے کے لیے پڑھنا کچھ اور چیز. کیا مانی ہے استاد کے لفظ؟ استاد
खड़ा हुआ, कद बुलंद हुआ ना बैठे लोगों में, खड़ा हुआ है, निगरान है, खड़ा हुआ जामिन है, खड़ा हुआ है कुछ दे सकता है, खड़ा हुआ है सब्र है, खड़ा हुआ है बर्दाश्त है, खड़ा हुआ है ज़र्फ है, और उसके बावजूद भी उसकी मीज़ान इधर से उधर नहीं है हिलती। जो जिसका जितना हिस्सा है उसको उतना ही देता है, उसमें उसके अपने जाती रद्द अमल पे नहीं होता। खफा हुए थे, नहीं हुए थे, इसने बदतमीजी की थी, नहीं की थी, इसने वक्त पे काम किया था, नहीं किया था, उस वक्त आपके सामने उसकी तहरीर होती या उसका कौल होता है जब वो आपसे बात करके बता। कमाल है, खड़ा हुआ, मीज़ान है, बदला लेना नहीं जानता। जो बदला लेता है याद रखिएगा वो झुक जाता है। कुरान कहता है कि सब्र से मदद मांगो, वस्तईनु बिस्सब्र। हम हर चीज से मदद मांगते, ठहरते नहीं, सब्र नहीं कर सकते, और सब्र की अदना तरीन मिसाल बर्दाश्त है। इल्म की कदर नहीं, और लोगों ने ये नहीं सोचा कि तालीम किसे कहते हैं। इल्म से पहले जब तरबियत की तेल लगा देते हैं तो तालीम होती है, और फिर मंजिल तक पहुंचना आसान होता है। मेरे नजदीक इल्म की कोई मंजिल नहीं है। अगर इल्म की मंजिल हो जाए तो हम सब रुक जाए। और मैं उन थोड़े से दीवाने लोगों में से हूँ जो ये समझते हैं कि मंजिल पर तो थकने वाला पहुंचता है, सफर करने वाला न थकता है। और मजे की बात यह है कि जब लोग उसको चलते देखते हैं तो कारवां खुद ब खुद बनता है। मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, बहुत मुस्कुरा के बात कर रही हूँ। मेरा दिल बेकरार और जख्मी है। अभी 2 महीने नहीं हुए कि मैंने अपना एक बेहद अजीज भाई खोया। लेकिन गम को बहाना नहीं बनाना चाहिए। गम सबसे बड़ी कुव्वत है आपकी, गम सबसे बड़ी कुव्वत है आपकी। तकलीफ से घबराइएगा नहीं। और जिंदगी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड नहीं है कि जिस पर आप निशान लगा दे वही डिश आ जाएगी। जिंदगी बड़ी अजीब चीज है, निशान और पे लगाते रहते हैं, आता कुछ और रहता है। और आप सब लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि खुदा के लिए खुश रहना सीख लीजिए। खुश रखें भी। खुदा के लिए खुश रहना सीख लीजिए। जो खुश होता है वो मुतमईन होता है, जो मुतमईन होता है वो अमल करता है, जो अमल करता है वो बामुराद होता है, और जो बामुराद होता है वो सुरखरू होता है। बहुत शुक्रिया। अगर दिल का दरवाजा भी बंद कर लें और आंखें भी बूंद लें और फिर कहें जबान भी अच्छी नहीं, लफ्ज भी बहुत मुश्किल है, ख्याल भी समझ में नहीं आता, अंग्रेजी क्या अच्छी जबान है कि आई लव यू एंड आई लव यू टू, मामला झटपट निबटता रहता है। जिस किसी काम को करके, बात को करके, वक्त को गुजार के आपके अंदर सवालिया निशान नहीं खड़ा होता, वो खुशी है। तालीम बहुत आसान, इल्म बहुत मुश्किल। हम अपने माशरे में तालीम दे रहे, दौड़ते रहे। कैसा कैसा PhD का ढेर लगाया हमने, मुझसे पूछिए। क्योंकि अब आपने उस्तादों के लिए, यूनिवर्सिटी के उस्तादों के लिए PhD लाज़मी करनी। देखिए, पढ़ाना एक आर्ट है। कभी कभी किसी के पास उतना इल्म नहीं होता जितना वो दे आता है। वो बात कर सकता है, कह सकता है, समझा सकता है। किसी के पास बेहिसाब इल्म होता है, देना नहीं आता। सो जो खुदा के इल्म को रसूल ने पहुंचा दिया सिर्फ इसलिए तो उन सबको देना आता।
और कोई रद्द अमल नहीं, तकलीफ हर तरह की पहुंचाई गई। और ये जरा मुश्किल काम, ये जरा मुश्किल काम। मुझे मालूम है आपने अपनी जिंदगी में कांटों का रास्ता चुना है, मगर ये मेरा ईमान है कि फूल भी आप ही चुना है, किसी दूसरे के बस की बात। खुश रहिए, सलामत रहिए और पल्ला मछली रहिए। कानून के लिए जो कानून बनाए वो भी और जो कानून माने वो भी, दोनों को अखलाक का कानून पहले मानना चाहिए। आपने इस, हम तो हैकड़ी में जिंदा है, मुझे तो सारा दिन हर शख्स धमकी देता लगता है। धमकी में हम कैसे मोहब्बत करेंगे समय, करते भी होंगे तो झिझक के पीछे हट जाएंगे। और अम्मा मेरी, मुझे नहीं याद कि मुझे अपने बचपन में कोई सुबह ऐसी याद हो जो उनकी तहज्जुद की नमाज के बगैर होती हो। और फिर हम लोगों पर उनकी जिंदगी तक एक बहुत अच्छी कैद लगी रही, यदि सुबह उठो, नमाज पढ़ लो, फिर सो जाओ, फिर कोई तुम्हें नहीं जगाएगा। लेकिन अगर तुम लोग सुबह की नमाज नहीं पढ़ते तो फिर नाश्ते की मेज पे मत आना, किसी के साथ नहीं खाओगे। और उनका ख्याल ये था कि आजिज़ी सीखना चाहिए, और खुदा जो कुछ देता है उसका तुम पर कोई हक नहीं है, वो सिर्फ नेमतें हैं, और नेमतों में सिर्फ शुक्रगुजार रहते हैं। मैं उनकी बड़ी ममनून रहूंगी, जब तक जिंदा हूं ममनून रहूंगी। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि शिकायत नहीं करते, शिकवा नहीं करते, जिंदगी जो कुछ देती है उसको शुक्रगुजारी से कबूल करते। तालीम मेरे ख्याल में रास्ता है, तालीम को मंजिल समझते हैं। इल्म मंजिल है, तालीम रास्ता है। और उस रास्ते को जो चीज रोशन करती है, आपको ठोकर लगने से बचा लेती है, आपको बने बनाए मेयार से इधर उधर होने से महफूज कर लेती है, वो चीज तरबियत है। हम एक दूसरे से वो सवाल नहीं पूछते जो हम पूछ सकते हैं। तुम्हारा मजहब कौन सा है? नमाज किस तरीके से पढ़ते हो? क़याम में खड़े हो तो टांगों के दरमियान से दुम्बा गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता? कोई मुझसे ये भी पूछे, आरिफा तबीयत ठीक है, घर में कोई दवा लाने वाला नहीं है, मैं ला दूं? जो इंसानों के इंसानों से पूछने के सवाल हैं, वो अगर हम पूछें तो हम रोशन ख्याल है। और अगर हम अपने एक दूसरे से वो सवाल पूछते रहें जो खुदा हमसे पूछेगा, तो हम बहुत अच्छे लोग। और एक बेचारा मेरा गालिब तो कह गया था कि उसे तो शर्म दामनगीर होती है। खुदा होते हमें शर्म दामनगीर भी नहीं होती, खुदा होते। जो जिस जगह खड़ा है वो खुद को खुदा समझता है। और मैं रोशन ख्याली के हक में हूँ, इसीलिए मैंने पहले कहा है कि जिंदा न भी गई तो सच्ची तो वापस जाऊंगी। डिसिप्लिन का मतलब दीवारें खड़ा करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब उस एहतियात के ख्याल को उनके अंदर पहुंचा देना है। वो जब एहतियात होगी तो वो मनसब का भी ख्याल करेंगे, आदाब को भी मलहूज़ खातिर रखेंगे, पहचानेंगे कि आप उस्ताद हैं, अपने साथी को पहचानेंगे कि साथी है। ड्रिल मत सिखाइए, लेट देम बी व्हाट दे आर। मगर तरबियत ये थी जो ये सिखाती थी कि मोहब्बत का भी सलीका होता है, मगर उससे बेहतर सलीका नफरत करने का होता है। हम मोहब्बत अब इसलिए नहीं कर पाते कि हमें नफरत करना नहीं आती। हम मोहब्बत करते हैं फायदा हासिल करने के लिए और नफरत करते हैं दुश्मनी पालने के लिए। हमने लफ्जों के मानी बिल्कुल आसानी से खत्म कर दिए। मुझे इतना अफसोस है, और मैं समझती हूँ कि तरबियत के बगैर कोई माशरा चाहे कितना अमीर हो जाए, और हमारी अमारत में तो कोई शक ही नहीं रहा। यकीन मानिए, अगर IMF सचमुच एक दिन को पाकिस्तान आ जाए
और पाकिस्तान के बड़े शहरों लाहौर या कराची में सड़कों पर गाड़ियां चलती देती है, तो जो कुछ देने का वादा किया है वो भी नहीं देंगे। दूसरी बात, तरबियत एक और काम सिखाती है। तरबियत सिखाती है कि जितना दामन है बस उसी में जिंदा रहना सीखो। जितना दामन है, कम है तो कम और ज्यादा है तो ज्यादा। जूतों का शौक था, अच्छे जूतों का, ये शायद आज भी है। और उस वक्त आपको मालूम अंग्रेज की हुकूमत थी तो बाहर के जूते भी हमारे पास आएगा, तो मैं बहुत शौक से अपने वो जूते पहने थी, क्रेप सोल के। आई स्टिल रिमेम्बर, बर्गंडी जूते और क्रेप सोल। तो बॉर्डर पर मेरे वो जूते फाड़ दिए गए कि उनमें नोट सिले हैं या उनमें चूड़ियां और कड़े सिले हैं। तो अटारी से वाघा तक का जो रास्ता है वो मैंने पैदल बगैर जूते के काटा, नंगे पाँव। शायद तब से ये मिट्टी मेरे अंदर उतर गई। क्योंकि एक बच्चे के लिए वो जो पसंद की चीज है वो तो जान के करीब है, हाँ। अजीज है, वो अजीज तरीन है। अजीज तरीन है, और आपको पता चले कि अच्छा ये इतनी मामूली सी चीज के साथ भी ऐसा हो सकता है। सो कोई बात नहीं, जो मुझे पाकिस्तान ने दिया वो मुझे कभी वहां न मिलता। काश वो बेमिसाल लोग जो कहीं गली कूचों में, कहीं किसी जगह मजबूर और महरूम हैं, हम उन तक और कुछ नहीं तो किताब पहुंचा दें। और जिसके हाथ में किताब होती है उसके हाथ से खंजर और बंदूक गिर जाती है, उसके दिल से वहशत निकल जाती है, और नफरत की बजाय मोहब्बत का राज होता है। और ये वो वक्त है जब राज करेगी खल्क़े खुदा। हम अंधेरे में तो खुद को ढूंढ लेते थे, और आज जब हम तरक्की की रोशनी में पहुंचे हैं तो हम आज अपने आप को न पहचान पाते हैं न ढूंढ पाते हैं। मसला शनाख्त का है, मसला तशख़्ख़ुस का है, और मुस्तक़बिल की तश्कील तो हमारे बस की आज तक हुई नहीं। माजी को तब्दील करने की फिक्र में है, मुसलसल माजी को तब्दील करने की फिक्र में है, क्या हमारा है क्या हमारा नहीं है। आप देखेंगे कि कुछ थोड़े से बेसलीका खानदानों में कभी कभी वर्षे पर इस तरह के तनाज़े खड़े होते हैं कि उनके सामने सलीके को और शर्म को भी शर्म आने लगती है। हम बिल्कुल उन्हीं खानदानों की तरह से तारीखी और तहजीबी विरसे पर लड़ते हैं। कठिन तुम्हारा लफ्ज है, दिक्कत हमारा लफ्ज है।